تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مزید 2 مقدمات درج ہو گئے۔ لاہور میں اسلام آباد پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر عمران خان اور شبلی فراز سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کوئٹہ میں عمران خان کے خلاف ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات پر FIR کاٹی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مزید 2 مقدمات درج ہیں۔ لاہور میں اسلام آباد پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر عمران خان اور شبلی فراز سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کوئٹہ میں عمران خان کے خلاف ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات پر FIR کاٹی گئی ہے۔ آپ کو اس خبر کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے۔ عمران خان اور شبلی فراز کے سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا معاملہ، اسلام آباد پولیس کو فرائض سے روکنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور سینیٹر شبلی فراز سمیت 150 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR SHO تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد ندیم طاہر کی مدعیت میں تھانہ گریس کوٹس لاہور میں درج کی گئی۔ FIR کے متن کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے لیے پہنچے تو ڈنڈا بردار افراد نے گھیراؤ کر لیا۔ تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد پولیس کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ ہجوم نے پولیس کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں۔ PTI رہنماؤں اور کارکنوں نے پولیس افسران اور اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ سینیٹر شبلی فراز نے بتایا کہ عمران خان نیازی جہاں موجود نہیں، انہوں نے ہمیں روکے رکھا اور کار سرکار میں مداخلت کی۔ عمران خان کے خلاف دوسرا مقدمہ بجلی روڈ تھانہ کوئٹہ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ شہری عبدالخلیل کاکڑ کی درخواست پر درج کیا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے اور اشتعال انگیز تقاریر کر کے نفرت پھیلائی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے اپنے رد عمل میں کہا کہ عمران خان کے خلاف 2 نئی FIR درج کر لی گئی ہیں۔ اب مقدمات کی تعداد 75 ہو گئی ہے۔ اس حکومت میں نہ کوئی شرم ہے نہ ہی حیا۔ رہنما تحریک انصاف حماد اظہر کہتے ہیں کہ بدھ کو زمان پاک سے عمران خان کی قیادت میں تاریخی انتخابی ریلی نکلے گی۔ ہم نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر عمران خان کا بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی کے اندر سے خطاب کروایا جائے گا۔ ریلی داتا دربار اختتام پذیر ہوگی۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری حماد اظہر نے تحریک انصاف کے دفتر جے روڈ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کے روز 1 بجے عمران خان ریلی کے ذریعے لاہور سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ عمران خان بلٹ پروف اور بم پروف گاڑی میں شرکت کریں گے۔ بدھ کے روز 1 بجے عمران خان صاحب لاہور سے انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ایک عالی شان انتخابی ریلی کا بندوبست کیا گیا ہے، جس کی قیادت چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب خود کریں گے۔ خان صاحب کے لیے ایک بوم پروف اور بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں ان کا بندوبست ہے، جس کے اندر ہی خان صاحب موجود رہیں گے اور اس کے اندر سے ہی ریلی کے مختلف مقامات پر وہ خطاب کریں گے۔ میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ یہ تاریخ ساز ریلی ہوگی۔ لاہور اب تحریک انصاف کا قلعہ بن چکا ہے۔ عدلیہ کو بھی سیلوٹ پیش کرتے ہیں جنہوں نے انتخابات کا اعلان کروایا۔ عمران خان کی تاریخی جدوجہد رنگ لائے گی۔ ہم عدلیہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی، کہ جنہوں نے 90 روز کے اندر انتخابات کو یقینی بنایا اور اس کا اعلان کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدھ کے روز کی ریلی جو ہے وہ آئندہ انتخابات کے رخ کا تعین کر دے گی، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ عمران خان کی یہ جو جدوجہد ہے، تاریخی جدوجہد جو ہے وہ رنگ لائے گی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عمران خان کی آواز کو اب کوئی نہیں دبا سکتا۔ بلاول اور مریم کے پاس بولنے کو بھی کچھ نہیں ہے اور کوئی ان کی سنتا بھی نہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملکی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ عمران خان کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر لیڈرشپ نے قانونی اور سیاسی معاملات پر حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔ شیخ رشید بھی عمران خان سے ملے ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی زمان پاک آمد۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے 1.5 گھنٹے سے زائد ملاقات کی۔ موجودہ سیاسی صورتحال سمیت 30 اپریل کو پنجاب اور عام انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ عمران خان کی زیر صدارت سینئر پارٹی رہنماؤں کے اجلاس میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے ممکنہ گرفتاری اور دیگر کیسز پر صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ عمران خان پر پیمرا کی جانب سے پابندی سمیت دیگر ایشوز اور بدھ کے روز لاہور میں بڑی عوامی ریلی کے انتظامات پر بھی مشاورت ہوئی۔ عمران خان کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جلسوں کے شیڈول پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی صورتحال زیر غور آئی۔ قانونی ماہرین بھی اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے بھی عمران خان سے ملاقات کی۔ مقدمات اور انتخابی حکمت عملی کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان اور میری خواہش ہے کہ پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہئیں۔ عمران خان گرفتاری سے مزید مقبول ہو جائیں گے۔ لیاقت علی رپورٹ کریں گے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات کے بعد زمان پاک لاہور کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان بدھ کے روز عظیم الشان ریلی نکالیں گے، لاہور کی ریلی میں شرکت کروں گا۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن پر بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ شہباز شریف 72 گھنٹوں میں اسمبلی توڑ دیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ 3 ججز نہیں پوری سپریم کورٹ کا ہے۔ راجہ سکندر سلطان کو کہتا ہوں الیکشن کا شیڈیول جاری کریں۔ 72 گھنٹے میں شہباز شریف اسمبلی توڑے اور صوبے اور مرکز میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں، اور اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ 3 ججوں کا فیصلہ نہیں، یہ 17 ججز کا فیصلہ ہے، ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے مزید کہا کہ عمران خان کا مشکل وقت کا ساتھی ہوں، ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ میں عمران خان کا ساتھی ہوں مشکل کے وقت، اور میں عمران خان کے ساتھ اس بات کا حامی ہوں کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے کیے جائیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عمران خان گرفتاری سے مزید مقبول ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف 74 مقدمات ہیں، مزید 100 بنا دیں تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی 2 حفاظتی ضمانتوں کی درخواستوں پر اعتراض لگا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگا کر عمران خان کی 2 حفاظتی ضمانت کی درخواستیں واپس کر دی ہیں۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض لگا دیا گیا ہے کہ اسلام آباد کے 2 مقدمات میں میاں اسم اقبال اور فاروق حبیب کی حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے فیصلے کی کاپی نہیں لگائی گئی۔ میاں اسم اقبال اور فاروق حبیب نے حفاظتی ضمانت کروائی تھی۔ رجسٹرار آفس نے ہدایت کی ہے دونوں ملزمان کی حفاظتی ضمانت کے فیصلے کی کاپی عمران خان کے کیسز کے ساتھ لگائی جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد کے تھانہ رملہ میں درج 2 مقدمات حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ عمران خان پر جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد حملہ کیس میں 4تھی JIT کی تشکیل کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ہی نوعیت کی درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ PTI کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے 4تھی JIT کی تشکیل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ ایک JIT کی موجودگی میں نئی JIT تفتیش نہیں کر سکتی۔ وفاقی حکومت نے JIT تشکیل دے کر بدنیتی کا مظاہرہ کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عمران خان حملہ کیس میں نئی JIT کی تشکیل سے متعلق نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے اور حتمی فیصلہ تک نئی JIT کو کام سے روکا جائے۔ عدالت نے ایک ہی نوعیت کی درخواستوں کو یکجا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام درخواستوں کو ایک ہی دن سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مزید سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ PTI کے رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے یہ کہا ہے کہ عمران خان حملہ کیس میں JIT سے متعلق وفاقی حکومت کی بدنیتی پہلے دن سے ظاہر ہو گئی تھی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور ہائی کورٹ کے احاطہ میں میڈیا سے گفتگو۔ بولی وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ کیس سے متعلق JIT کا سارا ریکارڈ سیل کر دیا گیا تھا، لیکن جب پروسیکیوشن کی ٹیم بھیجی گئی تو اس کمرے میں کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت کی بدنیتی پہلے دن سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے مزید کہا کہ پہلے وفاقی حکومت نے JIT بنا دی جس کے خلاف ہم نے درخواست دائر کی، اس کے بعد نگران حکومت نے ایک اور JIT بنا دی۔ یاسمین راشد نے مزید کہا کہ ہم عدالت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی ہر طریقے سے کوشش ہے کہ خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے، اگر اس پہ صحیح انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ اسیسینیشن تھی اور اس کے اندر یہ سارے لوگ ملوث تھے۔ اس کو نہ کرنے کی خاطر یہ اس طرح کے تماشے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں عدالت سے اس کے اوپر انصاف ملے گا۔ یاسمین راشد نے کہا ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارا پیغام عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ نون لیگ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ترقی کے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ سلمان طارق کی رپورٹ دیکھیے۔
नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट में हुआ। इजलास में पंजाब भर के डिवीजन्स और अजला के सदूर और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया गया और यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नौजवान पार्टी की असल ताकत है। नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके दिए हैं, उनको कुतब और लैपटॉप दिए हैं। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को वसअत दे चुके हैं। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इजलास में यूथ विंग की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल भी दी गई। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। मरियम नवाज और आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त नाक़ाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। मरियम नवाज और आज़म नज़ीर तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने एडवोकेट शाहिद राना की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने सरगोदा में तकरीर की और ये मामला उस अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। मरियम नवाज ने 6 मौक़े पर तौहीन अदालत की है। दरख्वास्त अपनी तशहीर के लिए दायर नहीं की, हमें तौहीन अदालत के कानून पर अमल दरामद कराना होगा। वकील ने नुक्ता उठाया कि अदालत मरियम नवाज और दीगर को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी करे। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए दरखास्तों को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि इमरान खान की असलियत कल टीवी पर कौम ने देख ली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए घर के बाथरूम में छिप गए थे। हुकूमत से कहूँगी कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करें तो दिमागी मुआयना भी करवाया जाए। मज़ीद तफसीलात देखिए। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने इमरान खान पर सियासी निश्तर चलाए और कहा कि समझ नहीं आए कि इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को डराने आई थी या गिरफ्तार करने। मुशर्रफ दौर में दीवारें फलांग कर भागते थे, अब पलस्तर उतार कर बाथरूम में छुप गए। एक शख्स ने तमाम इदारों से ऐलान जंग शुरू कर दिया है। तोशाखाना केस के अंदर पेश तो हो, पेश तुम हो नहीं रहे। तुम्हें अदालत बुला रही है, तुम्हारे खिलाफ नाकाबिले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी हैं तुम्हारे वो जारी हुए हैं, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ लीडर और इमरान खान गीदर है। लीडर वो जो बेटी का हाथ पकड़कर साजिश के बावजूद मुल्क वापस आकर जेल जाता है। गीदर वो होता है जिसकी तबीयत पुलिस को देखकर खराब हो जाती है। नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ के आता है और आकर जेल में चला जाता है और फिर भी कभी उस नवाज शरीफ को कभी कोई झुकते हुए, कभी कोई गिरते हुए, कभी कोई घबराते हुए नहीं देखता। इसको कहते हैं लीडर। और गीदड़ क्या होता है? गीदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है। पीटीआई रहनुमाओं की ऑडियो में सुन सकते हैं कि रात को जमानत पार्क में क्या होता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई में नून लीग को रगड़ा न दें। बिलावल भुट्टो जानते हैं कि मुल्क की मुआशी हालात कैसे हैं। जैसे ही दुनिया से पैसे पाकिस्तान आएंगे तो सैलाब ज़दगान की इमदाद करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद करती हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त पर समाअत की। राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के तहत गुजरात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। राना सनाउल्लाह के वकील फरहाद अली शाह ने दलाल दिए कि ये केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके कैंसिल रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। वकील ने दलाल दिए कि इस केस की तफ्तीश में कुछ मौजूद ही नहीं। बेंच के सरबराह जस्टिस अली बाकर निजफी ने रिमार्क्स ये है कि क्या आप तवक्को करते हैं कि हुकूमत खुद अपने वजीर दाखिला के खिलाफ कार्रवाई करती है? राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिकॉर्ड को नहीं देखा। जस्टिस शहबाज रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीश और मटेरियल इकट्ठा करना तफ्तीशी की जिम्मेदारी है। अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो क्या ये ज्यादा मौजू नहीं कि मुलजिम खुद जाकर पेश होता और बरियत की दरख्वास्त दायर करता। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी। इमरान खान के मीडिया एडवाइज़र फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के भी गुजरात की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, इस पर एक्शन क्यों नहीं होता? लाडला वो होता है जो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद इदारों के खिलाफ बातें करता है। लियाकत अली की रिपोर्ट।
PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का जेल रोड पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत मनफी और जहरीली मुहिम चला रही है। जो मफरूर हैं, मरियम कहती हैं कि इमरान खान उनसे बहादुरी उधार ले। बेटी कहती है उधार लो बहादुरी की, नवाज शरीफ से और शर्म से डूब मरो। तुम्हें तो जनाब बहादुरी और नवाज शरीफ का आपस में मेल मिलाप करते हुए भी 100 दफा सोचना चाहिए। फयाज चौहान का कहना था कि राना सनाउल्लाह की भी गुजरात की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। वजीर ला कानूनियत को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है, वहाँ पुलिस क्यों नहीं जाती? लाडला वो होता है जो जमानत देता है लेकिन मुलजिम वापस नहीं आता। 21 फरवरी 2023 राना जाहिद एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला गुजरात, उसने DPO गुजरात को वारंट जारी किया हुआ जो मैंने आपके सामने दिखाया है कि इस वजीर ला कानूनियत को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। वो तो दंदनाता फिर रहा है, उधर तो कोई पुलिस नहीं जाती, इमरान खान की तरफ भागे भागे आते हो। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो बातें करना छोड़ें, कारकर्दगी पर तवज्जो दें। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो चुका है। कहते हैं कि 2 रोज से व्हाट्सएप हैक है, अभी तक रिकवर नहीं हुआ। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। एक वक्त था कि नवाज शरीफ अदालतों का पसंदीदा बच्चा था। जब मैं चीफ बनने वाला था तो मुख्तलिफ इलाकों में कहता था कि अपना चीफ आ रहा है। तफसीलात देखिए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के होशरुबा इंकशाफात। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट 2 रोज से रिकवर नहीं हो रहा। खदशा है मेरे अकाउंट का डाटा हैक कर लिया गया है। मोबाइल डाटा को तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालिया एक जज साहब की ऑडियो सुनकर यकीन कर लिया था कि वो असली है। जब राब्ता हुआ तो पता चला कि ऑडियो फेक और टेम्पर्ड हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का मजीद कहना था कि नाअहली केस में मियाद से मुतालिक ओपन नोटिस किया था, जो भी आकर मुआवनत करना चाहे कर सकता है। जहांगीर तरीन अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। नवाज शरीफ ने नोटिस वसूल किया लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। इमरान खान को 3 निकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। इमरान खान के खिलाफ ऑफशोर कंपनी बनीगाला और फॉरेन फंडिंग के मामले पर फैसला दिया। मेरी जजमेंट अभी भी मौजूद है, देख सकते हैं। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था। नवाज शरीफ से मुताल्लिक गुफ्तगू में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो एक वक्त में अदालतों का पसंदीदा रहा। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा उसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा। जब मैं चीफ जस्टिस बनने वाला था तो नवाज शरीफ ये कहते थे कि अपना चीफ जस्टिस आने वाला है। इसी वजह से मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। साबिक चीफ जस्टिस ने मुल्क के मसाइल का हल इलेक्शन को करार दिया और कहा कि ताकतवर लोग मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। माजी में मुल्क के फैसले मोक्कलों और पीरों के जरिए किए जाते रहे। मुल्क का सबसे बड़ा मसला पानी, साफ हवा और बढ़ती हुई आबादी है। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुताल्लिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सूफिज्म के बहुत करीब हो चुके हैं। जिस दिन सहाफी सच लिखना शुरू कर देगा तो मुल्क के मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अब किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा। मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकाइक शामिल होंगे। मैंने जाती तशहीर पर शहबाज शरीफ और परवेज खटक से रकम निकलवा कर कौमी खजाने में जमा करवाई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कायद-ए-आज़म को अपना हीरो करार दिया और कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद इस बाबे की जिंदगी की पैरवी करना है जिसे बहुत कम वक्त मिला। इस बाबे ने पाकिस्तान से इश्क किया, अपनी फैमिली और जान तक की कुर्बानी दी जिसका कोई देन नहीं दिया जा सकता। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पुलिस के अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। आज पंजाब ने 19 DSPs के तकर्रुर और तबादले कर दिए हैं। आपको बताएं कि ज़िक्रिया यूसुफ को DSP पुरानी अनारकली लाहौर लगा दिया गया है। मोहम्मद उस्मान को DSP फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है, जबकि आबिद हुसैन जफर DSP YLS फैसलाबाद लगाया गया है। मुजाहिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, तकर्रुर तबादलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, IG पंजाब ने 19 SDPOs जो हैं उनके तकर्रुर तबादले करने के अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं। मोहम्मद उस्मान को DSP फैक्ट्री एरिया फैसलाबाद लगा दिया गया है। इसी तरह से मोहम्मद ताहिर को DSP निशाताबाद फैसलाबाद लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आबिद हुसैन जफर को SDPO AVLS फैसलाबाद लगा दिया गया है और जिक्रिया यूसुफ को DSP पुरानी नारकली लाहौर जो है वो तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह से कल रात भी जो है वो तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जो था वो जारी था। इसी IG पंजाब की जानिब से जो मजीद
तकरो तबादले किए गए हैं। उसमें मोहम्मद यकूब अवान जो हैं उनको DSP सिक्योरिटी लाहौर हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। शाहिद महमूद भट्ट है, उनको डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस हाफजाबाद तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से तो जो सैफुल्ला जो है उनको SDPO सिटी कसूर जो है वहां पे तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से अली अब्बास को DSP सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर जो है उनको तैनात किया गया है। इसी तरह से मोहम्मद सलीमुल्लाह जो हैं उनको SDPO जो मोबाइल सिविल लाइंस लाहौर वहां पे तैनात कर दिया गया है। इसी तरह से मोहम्मद एजाज को जो है DSP IAB कैपिटल सिटी डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है वहां पे उनको तैनात करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के मामले पर समाअत हुई है। अदालत ने एक वरना पंजाब और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा दी है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली के इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, अदालत इलेक्शन कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मंजूर करे। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने रिमार्क्स दिया कि हम अपील को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा देते हैं, आपको इसमें एतराज नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दरखास्त निपटाने पर एतराज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। फैसले में नहीं लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख दे। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब असम्बली के इंतखाबात के मामले पर दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में निपटा दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। एहतसाब अदालत में अहम नौयत की केसेस की समाअत आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत भी होगी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब इंक्वायरी में अबूरी जमानत पर समाअत भी होगी। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ नुमान नूर एहतसाब अदालत में मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। नुमान, अहम नौयत की केसेस पर समाअत आज होगी, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एहतसाब अदालत में और आज एहतसाब अदालत में मुख्तलिफ अहम नौयत के मुकदमात पर समाअत होने जा रही है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत आज होगी। जबकि अदालत ने उस मुकदमे में सप्लीमेंट्री रिपोर्ट जो है वो तलब कर रखी है। इसी तरह से पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल जो कि साबिक सूबाई वज़ीर सेहत सलमान रफ़ीक और मौजूदा वज़ीर रेलवे जो है ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके ख़िलाफ़ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस पर समाअत होने जा रही है, जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक अदालत के रूबरू पेश होंगे। और अदालत ने आज इस हवाले से ख्वाजा बरादरान के मुकदमे में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में जो उनकी बरीयत की दरख्वास्तें उन्होंने दायर कर रखी हैं उसमें हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं। दूसरी जानब अदालत ने नैब के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया था कि इसकी जो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट है वो आज अदालत में पेश की जाए। इसी तरह से एहतसाब अदालत में ही साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ मुकदमे पर समाअत होने जा रही है, जो कि अदालत ने उस मुकदमे में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट जो है तलब कर रखी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं अदालत में पेश होंगे और अदालत में पेश होकर अपनी हाज़िरी मुकम्मल करेंगे, जो कि अदालत नैब की रिपोर्ट देखने के बाद इन मुकदमात पर जो है वो ट्रायल करेगी। इसी तरह से जो है एहतसाब अदालत में इन तमाम मुकदमात की पेशी से कबल जो है वो अदालत के मरकज़ी दरवाज़े के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। पुलिस की जानिब से जो है गैर मुतल्लका अफराद को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इस मुकदमे में या जो अदालतों में साइलिन आ रहे हैं उनको फहरिस्तों से नाम देखकर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि आज ये मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात पर समाअत कुछ देर बाद जो है शुरू होगी। जी नुमान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पंजाब की जेलों में 45% जायद कैदी हैं। जेलों में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। लाहौर की दोनों जेलों में भी जगह कम पड़ गई है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब की जेलें कैदियों से भर गईं। सूबे की जेलों में 45% जायद कैदी। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक 36,000 गुंजाइश की जेलों में 53,000 कैदी बंद हैं। लाहौर की दोनों जेलों में भी कैदी गुंजाइश से जायद हैं। कोट लखपत जेल में 2,360 कैदियों की गुंजाइश, 900 जायद कैदी सजा भुगत रहे हैं। 1,425 कैदियों की गुंजाइश वाली लाहौर की कैंप जेल में 2,845 कैदी जायद हैं। अडयाला जेल, रावलपिंडी, सेंट्रल जेल, गुजरावाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत दीगर जेलों में भी गुंजाइश से जायद कैदी हैं। जरा के मुताबिक जेलों में जगह इतनी कम पड़ गई है कि अब सांस लेना भी दुश्वार होता जा रहा है। ऊपर से गर्मी में हालात और भी बुरे होने वाले हैं। महकमा जेल खाना जात की तरफ से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में नई जेलों के क़याम के लिए समरी भिजवाई गई थी। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। खबर ये भी है कि इम्पोर्ट बंद होने से लाहौर तलीमी बोर्ड को कागजी खरीदारी में मुश्किलात का सामना है, जबकि बोर्ड इम्तहानात लोकल पेपर पर होंगे। तफसीलात के मुताबिक बोर्ड इम्तहानात शुरू होने में कुछ रोज़ बाकी हैं। तालीमी बोर्ड्स को जवाबी कापियों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। तालीमी बोर्ड्स ने लोकल मार्केट से कागज़ की खरीदारी शुरू कर दी है, जबकि कुछ बोर्ड्स ने कागज़ की खरीदारी का मामला मुश्किलात विद सर्विस कर दिया है। बाज़ तालीमी बोर्ड्स को मेरिट के इम्तहानात के लिए जवाबी कापियाँ पूरी करने में मुश्किलात दरपेश हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि सवालिया पर्चे पर इम्पोर्टेड कागज़ के बजाय लोकल कागज़ पर तैयार किए जाएंगे। लाहौर बोर्ड को 25 लाख कापियाँ दरकार हैं, जिसमें से अभी तक 12 लाख ही खरीदी गई हैं। आमदन से जायद असासाजात का केस है। एहतसाब अदालत ने फवाद हसन फाद और उनके अहल खाना को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने करार दिया है कि ऐसी कोई शहादत मुयसर नहीं हुई जिससे फवाद हसन फाद का करप्शन के जरिए आमदन से जायद असासे बनाने का ताल्लुक साबित हो। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। आमदन से जायद असासाजात का केस। एहतसाब अदालत की जज उस्मा अख्तर चुगताई ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसला 16 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा फवाद हसन फवाद के खिलाफ जुर्म साबित करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अदालत फवाद हसन फवाद, वकार हुसैन, रबाब हुसैन और अंजुम हुसैन को बाइज्जत बरी करती है। इस्तगासा के 19 गवाह फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से जायद असासों से मुतालिक कोई शहादत नहीं दे सके। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि नैब ऐसी कोई शहादत नहीं दे सका जिससे फवाद हसन फवाद और उनके खानदान पर करप्शन के जरिए असासे बनाने का इल्जाम साबित हो। कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून के तहत सरकारी फंड्स का उनसर शामिल किए बगैर करप्शन साबित नहीं हुई। इस केस में तमाम ट्रांजेक्शन निजी नोयत की हैं, जिसमें सरकारी फंड्स शामिल नहीं। वो असासे जिन्हें बेनामी कहा गया, उनका फवाद हसन फवाद से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीरी फैसले के मुताबिक इस केस की तफ्तीश ठीक नहीं की गई। इसी बुनियाद पर तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी किया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। बिजली सारिफीन पर ₹3.39 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट। हुकूमत ने सारिफीन पर एक और बिजली बम गिरा दिया। बिजली के हर यूनिट पर 1 साल के लिए इजाफी सरचार्ज आयद। नेपरा ने हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। इस वक्त सारिफीन 43 पैसे फी यूनिट सरचार्ज अदा कर रहे हैं। रवां साल मार्च से जून तक सारिफीन से ₹3.39 फी यूनिट, जबकि जुलाई 2023 से जून 2024 तक ₹1.43 फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल किया जाएगा। सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। लाइफलाइन सारिफीन इजाफी सरचार्ज से मुस्तस्ना होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 मार्च से होगा। 300 से 700 यूनिट तक बिजली की कीमत में ₹3.82 का इजाफा। कमर्शियल सारिफीन भी अगले साल जून तक ₹3.82 तक अदा करेंगे। ज़राई सारिफीन भी ₹1.43 से ₹3.82 तक अदा करेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स के बेजा चलानों, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ये मामला है। आपको बताते चलें कि अवामी रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। मुतालबात के हक में नारेबाजी की गई है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। अवामी रिक्शा यूनियन बेजा चलान, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।
वाइस चेयरमैन अजीज अब्बासी और सीनियर नायब सदर हाजी रफाकत का ये कहना था कि नाजायज चालानों से तंग आ चुके हैं। अगर ये सिलसिला बंद न किया गया तो गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दे देंगे। लाहौर को जाम करके रिक्शा जलाओ मुहिम शुरू करेंगे। इनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिक्शा ड्राइवर का चलान ना करें। सुबह सुबह रिक्शा ड्राइवर घर से निकलता है, ये 1000-2000 रुपए का चलान करते हैं, रिक्शा बंद कर देते हैं, बदतमीज़ाना रवैया इस्तेमाल करते हैं। इस कंपनी को इनके वार्डनों को ना समझाया गया तो अवामी रिक्शा यूनियन गवर्नर हाउस के बाहर, वज़ीर आला हाउस के बाहर सरापा एहतजाज होगी और रिक्शा जलाओ तहरीक का ऐलान करेगी। मुजाहिरीन का ये कहना है कि बेजा चलानों का सिलसिला बंद न किया गया तो खुद सोजी कर लेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। महंगाई की शरह के मुताबिक अलाउंसेस बढ़ाने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स ने 8 मार्च को प्राइमरी हेल्थ ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। यंग डॉक्टर्स का ये कहना है कि दूर दराज सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को पेट्रोल और सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब की जनरल अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैट्रन इन चीफ YDA पंजाब डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर अम्मार यूसुफ, डॉक्टर मुदस्सर अशरफी, डॉक्टर शुएब नियाजी और डॉक्टर हसीब भी इस मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर सलमान हसीब ने कहा कि महंगाई की शरह के मुताबिक यंग डॉक्टर्स के अलाउंसेस में इजाफा किया जाए। दूर दराज सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स को पेट्रोल और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। अस्पतालों में अद्वियात और टेस्ट की बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। हम इस वक्त ऐलान करते हैं कि सरकार के किसी तरह के अहकामात का अमल नहीं करेंगे जब तक हमारी तनख्वाहें 150% एग्जेक्टिव अलाउंस हमें नहीं दिया जाता। ये सेक्रेटरियों की तनख्वाहें क्यों नहीं काटते आप? 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी जिसकी 4 लाख तनख्वाह है और हर जगह कमीशन है, उसको पेट्रोल 300 लीटर मुफ्त मिलता है। और एक डॉक्टर जिसकी तनख्वाह 110,000 2019 में भी थी, आज भी है, उससे आप हर चीज छीन रहे हैं। डॉक्टर शुएब नियासी ने कहा कि किसी और शोबे में बायोमेट्रिक हाजिरी है तो डॉक्टर्स की भी कर दें। डॉलर्स में देखें तो तनख्वाह आधी रह गई है। कुर्बानी देनी है तो पहले हुक्मरान और मरात याफ्ता तबका दे। जो सेक्रेटरी अली जान साहब हैं, इनसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपने हालात पुरअमन रखने हैं और डिस्ट्रिक्ट चलाने हैं तो खुदारा ये जो नए नए शोशे आप डेली चला रहे हैं ये बंद कर दें। हमें धरना देना भी आता है, हमें घेराव करना भी आता है, और अगर 48 आवर्स के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं की जाती तो हमारा प्राइमरी सेकेंडरी के घेराव का भी प्लान है, वहाँ पे धरना भी देंगे। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने 8 मार्च को प्राइमरी हेल्थ ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। जश्न बहारा फेस्टिवल की दिलफरेब तकरीबात जारी हैं। शहरी मुख्तलिफ मकामात पर तफरीह के लिए पहुँच रहे हैं, जबकि ग्रेटर इकबाल पार्क में लगी लकी ईरानी सर्कस से शहरी खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ज़ैन अली की ये रिपोर्ट देखिए। जश्न बहारा फेस्टिवल के दूसरे रोज फैमिलीज की बड़ी तादाद ग्रेटर इकबाल पार्क लकी ईरानी सर्कस देखने पहुंची। बच्चे, बड़े, खवातीन और फैमिलीज सर्कस से खूब लुत्फ अंदोज हुई। खानों के स्टॉल्स पर भी शहरियों का रश रहा। लकी ईरानी सर्कस देखने के लिए आए शहरियों का कहना था कि इस किस्म के फेस्टिवल सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए अशद जरूरी हैं। इस तरह की मुझे जो इनकी क्रिएटिविटी है, इनके जो हार्ड वर्किंग है वो बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह की इवेंट्स और फेस्टिवल्स होने चाहिए। सर्कस बहुत अच्छी लगी है। मैं एग्जाम्स के बाद यहाँ घूमने आया हूँ। मुझे सर्कस में ये मुख्तलिफ शोज बहुत अच्छे लगे हैं। एक अच्छा इवेंट है और एक अच्छा फैमिली गैदरिंग है। इस तरह के इवेंट्स को हमें प्रमोट भी करना चाहिए। जश्न बहारा मेले में लकी ईरानी सर्कस समेत 9 मुख्तलिफ तकरीबात 5 मार्च से 12 मार्च तक जारी रहेंगी। शहर में जश्न बहारा की तकरीबात उरूज पर हैं। अलहमरा हाल में नामवर क्लासिकल गुलकारों की आमद का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में गुलकार बिलाल सईद ने शाम मौसीकी में खूब रंग जमाए। अवैस महमूद की रिपोर्ट देखिए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 7 रोज़ा जश्न बहारा की तकरीबात जारी हैं। दूसरे रोज की तकरीब में मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मारूफ क्लासिकल गुलकार उस्ताद हामिद अली खान ने शानदार परफॉर्मेंस से खूब दाद समेटी। जश्न बहारा शाम मौसीकी की तकरीब नेशनल हॉकी स्टेडियम में सजाई गई। नामवर गुलकार बिलाल सईद ने आवाज का जादू जगाया। गुलकार समीर सुहेल ने भी खूब रंग जमाया। शहरी जश्न बहारा तकरीबात से खूब महजूज हुए। कहते हैं ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। फैमिलीज ने बड़ी तादाद में तकरीबात में शिरकत की। जश्न बहारा की तकरीबात हफ्ता भर जारी रहेंगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबीन हैदर के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़।
लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे की तकमील में अहम पेशरफ सामने आ गई। लाहौर ब्रिज में एक इजाफी लेन तामीर करने के लिए गर्डर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा। LDA ने फिरोजपुर रोड पर ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज की तकमील का प्लान बना लिया। मंसूबे की तकमील में अहम पेशरफ, लाहौर ब्रिज में एक इजाफी लेन तामीर करने के लिए गर्डर्स लॉन्च कर दिए गए। LDA ने लाहौर ब्रिज तोसी का काम डाउन रैंप की तामीर से शुरू किया। मंसूबे के लिए कुल 64 गर्डर्स लॉन्च किए जाने हैं। LDA की जानिब से इब्तदाई तौर पर 5 गर्डर्स लॉन्च कर दिए गए। लाहौर ब्रिज की तोसी का काम आइंदा 3 माह के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मॉडल टाउन कचहरी के बाहर वकला की जानिब से अराजी फराहम न करने पर मंसूबे में ताखीर हुई। 10 माह ताखीर के बाद महकमा रेलवे की जानिब से NOC का इजरा किया गया। SNGPL की जानिब से भी पाइपलाइन की शिफ्टिंग के लिए NOC न दिया गया। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि लाहौर ब्रिज की तोसी के मंसूबे पर तेजी से काम जारी है। मंसूबे की तकमील से शहर की ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। लाहौर समेत सूबे भर को साफ सुथरा बनाने का मिशन जारी है। लिबर्टी चौक पर 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज भी कर दिया गया। सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम मुराद ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया है। इमरान अकबर की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब को सफाई सुथराई के लिहाज से मिसाली सूबा बनाने का अज़म। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए निगरान सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना था, डोर टू डोर कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाएगा। पार्क और खेल के मैदानों को खास तौर पर साफ किया जाएगा। सड़कों को रोजाना की बुनियाद पर धोया जाएगा। अपने मोहल्ले को, अपनी गलियों को, अपने घरों को और पब्लिक पार्क्स जो हैं और जो ग्रेवयार्ड्स हैं और बेत जो सड़कें हैं, इन सबको हम इंशाअल्लाह एक बार जो है साफ़ करें और ऐसी सफाई करें जो आपको इंशाअल्लाह तारीख़ में कभी ना नज़र आई हो। और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए, मीडिया का भी साथ चाहिए। सेक्रेटरी बल्दिया डॉक्टर इरशाद अहमद ने बताया कि सब्जी मंडियों, मार्केटों और बस टर्मिनल्स को सफाई के लिहाज से मिसाली बनाया जाएगा। तालीमी इदारों में आगाही लेक्चर्स का एहतमाम भी किया जाएगा। डैशबोर्ड बना दिया जिसके ऊपर डेली की एक्टिविटीज़ जो है वो अपलोड हो रही हैं। उसको किसी वक्त भी रिव्यू किया जा सकता है या व्यू भी किया जा सकता है, तो उसको डेली उसकी एनालिसिस होती है। अवाम को भी हुकूमत के साथ सफाई मुहिम में साथ देने की तलकीन की गई। CPD पंजाब ने कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग का मंसूबा मुकम्मल करने के लिए नई डेडलाइन वज़े कर दी है। रवा माह 23 मार्च को कलमा अंडरपास से CPD बुलवार्ड बैरल को तामीर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कलमा चौक की रिमॉडलिंग का मंसूबा CBD पंजाब ने अंडरपास का मंसूबा मुकम्मल करने के लिए नई डेडलाइन वज़ा कर दी। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग के तहत अंडरपास से ही 2 बैरल बनाए जाने हैं। अंडरपास से मेन बुलवर्ड CBD को जाने वाले बैरल के लिए डेडलाइन तय कर ली गई। रवा माह 23 मार्च को कलमा चौक अंडरपास से CBD बुलवर्ड बैरल को तामीर करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। CBD पंजाब ने अंडरपास बैरल की छत डालने का काम मुकम्मल कर लिया। CBD पंजाब ने कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे के तहत पाइलिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया। CBD पंजाब की जानिब से 2088 पाइलें बिछाई गई हैं। 23 मार्च तक कलमा चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का काम 90% से ज्यादा मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी गई। PHA के पार्क्स का बड़ा ऑडिट शुरू हो गया। महकमाना हाउसिंग ने 8 रोज़ में तमाम पार्क से तजावज़ात ख़त्म करने का हुक्म भी दे दिया। पार्क्स में गैर कानूनी प्रोग्राम्स के इनेकाद पर भी पाबंदी आयद कर दी। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। PHA के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर मुबैना कब्जों का इंकशाफ। ग्रीन बेल्ट्स में बनने वाली कंटेनर्स और पुख्ता तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। PHA लाहौर के पार्क्स का ऑडिट शुरू। महकमा हाउसिंग ने तमाम डायरेक्टर से तफसीलात तलब कर ली। PHA इंतजामिया को तमाम पार्क्स के एतराफ तजावुजात के खात्मे के लिए 8 रोज की डेडलाइन दे दी। शहर के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में गैर कानूनी शादियों और प्रोग्राम्स पर मुकम्मल पाबंदी आए। महकमा हाउसिंग की जानिब से जारी करदा हिदायत में कहा गया है कि डायरेक्टर शहर भर के पार्क्स की जगहों पर तजावुजात का खात्मा करें। तहरीरी रिपोर्ट 8 दिन में जमा करवाई जाए। पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में गैर कानूनी प्रोग्राम्स के इनेकाद पर PHA को कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर।